हाँ, तो we were discussing a very interesting scenario in which there were three friends, तीन दोस्त थे, and the three friends were met after a long time and they started discussing their salary. The friend's name was, एक था उसका नाम था AP, दूसरे का नाम था ANMM और तीसरे का नाम था what was her name? NS. Okay, so NS said that I am getting rupees 100. Okay, ANMM said that I am getting 50% more than you. So 50% more than you matlab 50% more than you matlab 100 in multiplied by 1 plus 50 upon 100. ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे so you will get it as 100 into 1 plus 1 upon 2 which is equal to 100 into 3 upon 2, my dear friend, and its value will be 150. Now what happened, they both of them went to AP और AP से पूछा कि हाँ भाई AP, how much you are getting? So AP very proudly said, I am getting 50% more than what ANMM is getting. तो जब AP ने बोला कि I am getting 50% more than what ANMM is getting, so his salary was 150 multiplied by 1 plus 50 upon 100. So after solving it, you will find that AP was getting 225. ठीक है, तो इन तीनों की जो सैलरीज थी वो थी, AP की सैलरी, NS की सैलरी थी, NS की सैलरी थी 100, ANMM की सैलरी थी 150 एंड AP की सैलरी थी 225. ठीक है, ये जो है ये इन तीनों की सैलरी थी. ये तो हो गई एक कंडीशन बेटा. अब वी विल डिस्कस अबाउट अनदर कंडीशन. वी विल डिस्कस अबाउट द रिवर्स ऑफ दिस कंडीशन. लेट अस सी हाउ व्हाट विल हैपन इन द रिवर्स ऑफ दिस कंडीशन. सो नाउ ये तो हो गया एक सिचुएशन जबकि हमारे तीनों दोस्तों की सैलरी थी, एक की सैलरी थी 100, दूसरे की सैलरी थी 150, तीसरे की सैलरी थी 225 और एक की सैलरी दूसरे की सैलरी से 50% ज्यादा थी. बट नाउ द सिचुएशन इज लिटिल बिट डिफरेंट. अभी तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग कम से ज्यादा की तरफ बढ़े. वी वेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. We went in the increasing order. Now we will move in the decreasing order. Now we will move in the decreasing order. How we will move in the decreasing order? That I will just tell you. So what I was saying that अभी तो अपन ने एक केस डिस्कस किया जहां पे the salaries were increasing. Now we will discuss another case where the salaries are decreasing. कैसे सर? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे AP है, see here we are having one person whose name, just here we are having one person whose name is AP and his salary is 225. यहाँ पे एक दूसरा पर्सन है whose name is ANMM जिसकी सैलरी थी 150 और उसके बाद एक तीसरा पर्सन है whose name is NS is 100. अब मेरे को ये बताना है, अब डेफिनेटली ये तो आप लोग को पता है कि दिस 150 is less than 225. This 150 is less than 225. तो आपको ये बताना है कि how much percent is 150 less than 225. Your task is, please understand your task carefully. I know that this 225 is 50% more than 150. But you have to tell me how much is 150 less than 225. समझ में आया क्या करना है आप लोगों को? एक बार फिर से समझो. आपको ये पता है कि जो 225 है, दिस इज 50% मोर देन 150. ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है. इट इज क्लियर.
बट आपको ये बताना है कि हाउ मच इज 150 लेस देन 225. solve and tell me the value. Savan, solve it and tell me the value. क्या वैल्यू आएगी? जस्ट सॉल्व इट एंड टेल मी. सो आपको जब ये बताना है कि हाउ मच इज 200, हाउ मच इज 150 लेस देन 225, तो इसको आप कैसे करोगे बेटा? सबसे पहले आप अपन ने क्या सीखा था? अगर हमको निकालना हो कि हाउ मच ए नंबर इज लेस देन अनदर नंबर, तो अपन ने क्या सीखा था? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय फाइनल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू इन 200. यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स, दिस विल बी माय इनिशियल वैल्यू, दिस विल बी माय फाइनल वैल्यू. ठीक है, तो अपन ने क्या सीखा था? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू. फाइनल वैल्यू कितनी है? 150. इनिशियल वैल्यू कितनी है? 225. अब इनिशियल वैल्यू कितनी थी? 225. दिस whole multiplied by 100. Don't worry about the sign. Don't worry about the sign, because the sign will be absolutely obviously the sign will be negative, because here we are discussing a negative case, so the sign has to be negative. So my final value will be minus 75 divided by 225 multiplied by 100, which is equal to 100 divided by 3%, which is nothing but 33 1 by 3%. 33 1 by 3% decrease. So an increase of 50% is nothing but a decrease of 33 1 by 3%. This is what I wanted to tell you through analysis. ये जो है आपको मैं बताना चाहता था थ्रू एनालिसिस, कि अगर एपी की सैलरी एएनएमएम की सैलरी से 50% ज्यादा है, तो एएनएमएम की सैलरी एपी की सैलरी से 33 1 by 3% कम है. Yes, negative sign will come because it is showing negative. अगर एपी की सैलरी एएनएमएम की सैलरी से 50% ज्यादा है, तो एएनएमएम की सैलरी एपी की सैलरी से 33 1 by 3% कम होगी. दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस क्वेश्चन. अब ये तो अपन ने एनालिसिस सीखा. अब हम बात करेंगे कि मान लो जब आप एग्जाम देने गए और आप एग्जाम देने टाइम पे आप प्रॉपर गजनी हो गए मतलब आई मीन अब अपन बात करेंगे कि ठीक है, ये तो सर आपने बता दिया कि ठीक है ये एनालिसिस होती है, हमने समझ भी लिया. लेकिन कई बार क्या होता है सर कि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता कि मैं ये एनालिसिस करूं. ठीक है, मुझे एग्जाम में जल्दी से जल्दी फॉर्मूला लिखना है, आगे बढ़ना है, क्वेश्चन से मार्क करना है, आगे बढ़ना है. दैट आई वांट टू डू. तो टेल मी द फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला बताओ सर. तो मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है? ध्यान से सुनना बेटा. if B is X% more than A, if B is X% more than A, यहाँ पे प्लस X का मतलब B is more than X% more than A. प्लस X का मतलब है B is X% more than A. In that case A will be X upon 100 plus X % less than B. कहने का क्या मतलब है बेटा कि अगर B जो है अगर B जो है वो A से 50% ज्यादा है, तो A जो होगा वो 50 upon 100 plus 50, that is 50 upon 150, इतना परसेंट, that is
33 1/3% लेस देन ए होगा। 50/100 प्लस 50 मल्टीप्लाइड बाई 100 इतना परसेंट लेस देन बी होगा। दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड दिस, जो कि अपन कल पढ़ रहे थे, जहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, है ना। आई होप ये चीज अब क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। आई होप ये चीज अब क्लियर हो गई होगी। ऑल्दो आई हैव डिसेबल्ड द चैट, तो आई हैव डिसेबल्ड यू टू स्पीक। तो प्लीज आप ही बताओ मेरे को कि जस्ट राइट इन द मैसेज एंड टेल मी whether you guys have understood or not. Okay, ठीक है, I got the confirmation. Yes, you guys have understood. Just give me one day time. I will change that setting कि आप लोग अपने आप को खुद से म्यूट कर सकते हो। I will just give me one day set. वो कुछ सेटिंग्स में चेंज करना पड़ता है, I don't know कहाँ से चेंज होता है, मैं कर लूंगा। ठीक है। So this was the concept behind this. ठीक है, तो अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं और आगे की बातें करते हैं। अब हम एक टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू इज वी विल रीड ए टेबल। कैसा टेबल पढ़ेंगे सर? हम पढ़ेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शंस में अपन कैसे जल्दी से जल्दी चेंज कर सकते हैं, या फ्रैक्शंस को परसेंटेज में अपन कैसे जल्दी से जल्दी चेंज कर सकते हैं, इसका अपन अभी एक टेबल पढ़ने जाना है। सपोज करो 1/2 है, ठीक है। तो ये जो 1/2 है, इस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ सर? मैं इस 1/2 को, जैसे अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें डिनोमिनेटर हमारा 100 होना चाहिए, ठीक है। और न्यूमरेटर में कुछ भी हो, डिनोमिनेटर हमारा, अगर डिनोमिनेटर मुझे 100 चाहिए, 101 भी नहीं चाहिए, 99 भी नहीं चाहिए, 200 भी नहीं चाहिए। आई वॉन्ट एग्जैक्टली द डिनोमिनेटर एज 100। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, डिनोमिनेटर को 100 बनाऊंगा बाय सम ऑपरेशंस, और उसके बाद जो भी नंबर आएगा न्यूमरेटर में, उसके बगल में मैं परसेंटेज का साइन लगा दूंगा। सो व्हाट आई विल डू इज 1/2 इज इक्वल टू 1 into 100 डिवाइडेड बाय 2 into 100, ठीक है। अब इसको जब अपन सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी 100 डिवाइडेड बाय 2 into 100 which is equal to 50/100, और इट विल बी नथिंग बट 50%, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो मैं 1/4 की बात करता हूँ, तो 1/4 क्या हो जाएगा सर? 1 into 100। अब मेरे को डिनोमिनेटर में तो 100 चाहिए, तो डिनोमिनेटर में 100 चाहिए, इसके लिए दो तरीके हैं। या तो आप 4 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास 100 आ जाएगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप 25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास 100 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। या आप क्या कर सकते हो कि आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इन दैट केस यू विल गेट 100 as the 100 in the denominator. So what I am doing is I am multiplying numerator and denominator by 100. So it will be 1 into 100 divided by 4 into 100. अब मैं इस वाले 100 को टच नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे डिनोमिनेटर में तो 100 चाहिए था, बट दिस 4 इज अनवांटेड, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या बोला था कि मुझे ना 101 चाहिए, ना 99 चाहिए, ना 200, 300, 500 कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ 100 चाहिए। तो अब यहाँ पे तो 400 है, so this 4 is unwanted. So what I will do is I will cancel it out. So this will become 25/100, और जहां पे डिनोमिनेटर में 100 दिखा भैया, उस 100 को हटा दो और परसेंटेज का साइन चिपका दो। आई एम टॉकिंग इन द लैंग्वेज ऑफ यूपी ईस्ट पीपल, कि जहां पे 100 दिखा भैया, तो क्या करो, उस 100 को जहां पे डिनोमिनेटर में 100 दिखा, तो उस 100 को हटा दो और परसेंटेज का साइन अपनी जेब से उठा के लगा दो, और उस 100 को अपनी जेब में रख लो। Nobody will say कि आपने कुछ गड़बड़ की। So 1/4 is equivalent to 25%. कैसे आया? That we have seen. 1/2 is equivalent to 50%. कैसे आया? That also we have seen. अब आता है अगला जो चीज आएगी, वो आएगी एक टेबल। कैसी टेबल आएगी सर? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेबल, ठीक है। आप
8th में भी ये टेबल पढ़ोगे, 9th में जो बच्चे IGSO बैच में एडमिशन लेंगे वो भी ये टेबल पढ़ेंगे, 10th में 11th में perhaps we don't deal with these type of tables, but अगर आप ग्रेजुएशन के बाद अगर आप MBA करोगे then also you will read this table. क्या है ये टेबल? देखो सर, दिस टेबल इज नथिंग बट परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन. अब इसमें से बेटा इफ यू वांट टू रियली डू इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो ये टेबल आपको याद होना चाहिए, और आज अगर याद करके रखोगे तो फ्यूचर में हमेशा आपको फायदा देगा. ठीक है, ये टेबल आपको याद होनी चाहिए. याद करने का तरीका क्या होता है सर? अब देखो मैं आपको इस टेबल को याद करने का तरीका समझाता हूँ. एक तो मेथड हमने जो सीखा है वो तो बेसिक है ही, लेकिन अगर मान लो कभी बेसिक से ना चलने का मन करे तो व्हाट यू विल डू इज यू विल 1/2 तो आपको याद हो जाएगा कि सर 1/2 जो होता है वो तो 50% होता है, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस. 1/2 तो हमें याद हो जाएगा कि 1/2 जो होता है वो 50% होता है. 1/3 जो होता है सर दैट इज 33, 1/3 33.33%. ये भी मेरे को याद है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1/4 जो होता है सर दैट इज 25%. ठीक है, 1/4 इज नथिंग बट 25%. 1/5 इज 20%. 1/6 is 16.66%. 1/7 is 14.28%. 1/7 will be 14.28%. 1/8 will be 12.5%. 1/8 कितना होता है? That is 12.5%. 1/9 will be 11.11%. 1/9 कितना होगा? That will be 11.11%. 1/10 जो होगा मेरे दोस्त, 1/10 will be 10%. ठीक, 1/11 will be 9.09%. 1/11 कितना होगा? 9.09%. 1/12 कितना होगा सर? 1/12 will be 8.33%. बहुत आसान है. कैसे आया सर 1/12 8.33%? कैसे आया सर? देखो अपन ने सीखा था कि किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करो, 100 डिवाइडेड बाय, जैसे 1/12 है, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे सर? 100 डिवाइडेड, इट विल बी नथिंग बट 100 डिवाइडेड बाय 12%. अब ये जो 100 डिवाइडेड बाय 12% है, अब देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं जो सिखाने जा रहा हूँ. ठीक है, 8.33 आपकी मेमोराइजिंग कैपेसिटी अच्छी है तो आप याद कर लोगे, लेकिन मेरी नहीं है. तो मैंने इसको कैसे याद किया था, ध्यान से सुनना. मुझे ये पता है कि 12 8 is 96. ठीक है, ये मुझे पता है कि 12 8 96 होता है. तो जब मैं 100 को 12 से डिवाइड करूंगा मेरे दोस्त, तो मुझे मिलेगा 8/4/12 मिलेगा. ऐसा ये तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में हो गया. 8/4/12 विच इज नथिंग बट, अब 4/12 को तो अपन कैंसिल कर सकते ना, विच इज नथिंग बट 8/1/3%. अब दोस्त एक बात बताओ मेरे को, क्या 1/3 को अपन ने सीखा था ना कि 1/3 इज नथिंग बट 0.333333 डॉट 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 डॉट. ऐसा अपन ने सीखा था एक दो चैप्टर्स पहले, याद करो. So my dear friend, this is how I got 100 divided by 12 as 8.33333%. तो किसी भी चीज को रटना नहीं है. हम लोग जब स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स पढ़ रहे थे, याद करो बेटा, तब भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कुछ भी रटना नहीं है. जब अपन स्क्वायर्स की बात कर रहे थे तो मैंने आप लोगों को उस समय भी बताया था कि डोंट मेमोराइज एनीथिंग, जस्ट स्टिक टू योर बेसिक्स. अपने बेसिक्स तक स्टिक रहो और सारी चीजें इजीली होंगी. मैं बोल रहा हूं, मेरी गारंटी है सारी चीजें इजीली होंगी. ठीक है, बट यू हैव टू स्टिक टू योर बेसिक्स. क्लास करो रेगुलरली, अपना ख्याल रखो, अपनी इम्यूनिटी पे वर्क करो. हालांकि योर पेरेंट्स शुड बी वर्किंग ऑन इट डेफिनेटली, और इन चीजों पे काम करो. आपका काम सिर्फ यही होना चाहिए, पढ़ाई करो, क्योंकि बेटा आप लोग बहुत लकी हो. टुडे ओनली आई गॉट ए न्यूज. So I was telling you
that 1/12 इस तरीके से ये जो 1/12 आया था दोस्त, ये 8.33% आया था. Similarly 1/13 will be 7.69%. ठीक है, 1/14 will be 7.14%. अब देखो यहाँ पे याद करने का तरीका है, 1/7 क्या था, 14.28. 1/14 क्या हुआ, 7.14. इसका जस्ट आधा, इसका जस्ट आधा. 1/15 क्या है, वो 6.66% है. कैसे आया सर 6.66%? 1/5 क्या था, देखो यहाँ पे 1/5 था 20%. तो 1/15 क्या हो जाएगा, 1/15 इज जस्ट 1/3 ऑफ 1/5. तो यहाँ पे जो है ये इसका 1/3 हो जाएगा, डेट इज 6.66%. इस तरीके से आप इन चीजों को याद रख सकते हो. अगेन 1/16 विल बी 6.25%. ये याद करने की जरूरत है. 1/17 विल बी 5.88%. 1/18 विल बी, 1/18 कैसे आया सर, 5.55%. 1/18 को जानने के लिए मैं, मेरे दोस्त, ये जो 1/9 है इसका हाफ कर दो. 1/9 का जितना परसेंट है उसका हाफ कर दो, आपको 1/18 का परसेंट मिल जाएगा. 1/19 अगेन, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको याद करना पड़ेगा. 1/20 इज अगेन यू नो इट इज 5%. 1/21 कैसा है सर, 1/21 आ गया. ये जो 1/7 था ना, कहाँ गया 1/7? इस 1/7 का 1/3 कर दो. 1/7 का जो परसेंटेज इक्विवेलेंट था, इसको आप डिवाइडेड बाय 3 कर दो तो आपको 1/21 मिल जाएगा. 1/22 के लिए आप क्या कर सकते हो, 1/11 का जो परसेंटेज इक्विवेलेंट था ना, उसको आप हाफ कर दो तो 1/22 मिल जाएगा. इस तरीके से आप चीजों को कोरिलेट करके बहुत आसानी से याद कर सकते हो. अगेन अनफॉर्चुनेटली 1/23 का हमारे पास कोई वो नहीं है. वी डोंट हैव एनी ट्रिक अबाउट 1/23. ये याद करना पड़ेगा. तो 3-4 वैल्यूज हैं प्राइम नंबर वाली, वो याद कर लो. 1/13 है, 1/17 है, 1/19 है, 1/23 है. बाकी सबके लिए तो ट्रिक है ही. तो इस तरीके से ये परसेंटेज कैलकुलेशन आपको याद करना पड़ेगा. आपके लेवल पे स्कूल में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे जहां पे इतनी प्रॉब्लम होगी. बट यस, कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे, जैसे ओलंपियाड वगैरह में. अब पता नहीं व्हाट द गवर्नमेंट इज प्लानिंग, लेकिन अगर ओलंपियाड वगैरह कंडक्ट होते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे जरूर होंगे जहां पे आपको थोड़ा सा मतलब इन चीजों का यूज होगा. और जो आपके टेस्ट होंगे इंस्टीट्यूट में, वहां तो बेटा जरूर इन चीजों का ही यूज होगा. ठीक है, तो थोड़ा बहुत इन चीजों को याद कर लो. ठीक है, जस्ट रिमेम्बर, जस्ट मेमोराइज दीज थिंग्स. ओके, अब हमारे पास 3 सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं. ठीक है, पहला वाला यू आर नॉट सपोज टू डू. You are supposed to do example number 2 and example number 3. The time that you guys have, although the time of the class is almost over, the time that you guys have is just 2 minutes for this question. First of all, take the screenshot of this page. Every one of you take the screenshot of this page. तो आपको करना क्या है कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं करना है. You have to attempt question number 2 and question number 3. ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 we will be discussing here. Question number 2. Question number 3 आप लोगों का होमवर्क है, that we will discuss in the next class. And the time that you have for question number 2 is 2 minutes. 2 मिनट आपके पास टाइम है क्वेश्चन नंबर 2 को करने के लिए. So I'm just pausing my this thing and I'll wait for 2 minutes. Most of you have given the answer, and the thing is, they basically there is a conflict on the 2 solutions. एक ने बोला, एक group is saying that the answer is 198 and another group is saying that the answer is 200. अब किसकी बात मानी जाए? बेसिकली आप लोगों से मिस्टेक ये हुई है दोस्तों कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को ठीक से समझा नहीं. क्वेश्चन तो ठीक से समझ लिया, पूरा क्वेश्चन समझ लिया, लास्ट में आके मिस्टेक कर दी, और कोई बात नहीं है. ये 33% है दोस्त, 33 1/3 नहीं है. सो दिस विल बी नथिंग बट 33/100. 33/100 होगा. आप लोगों ने क्या किया है, those who have given answer as 198, what they have done is
they have taken the percentage as 33 1/3%. ठीक है, चलो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। एक स्टूडेंट है जिसको 40 नंबर आए एग्जाम में और एंड ही फेल्स बाय 26 मार्क्स, यानी कि द पासिंग मार्क्स इन द टेस्ट वाज इन द एग्जाम वाज 40 plus 26 which is equal to 66. The passing marks in the exam was 40 plus 26 which is equal to 66. Now this 66 is equal to 33% of the maximum marks. If the passing percentage is 33, that is it is equal to 33 upon 100 into maximum marks. So from here what we will get, इसको cancel कर देंगे, so maximum marks will be equal to 2 into 100 which is equal to 200. आप लोगों का 198 इसलिए आ रहा था my dear friends because you were taking it as 33 1/3%. आपने इसको 33 1/3% समझ गया, इसलिए आप लोगों का 198 आ रहा था। ठीक है, ओके। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक आदमी है जो कि अपने इनकम का 75% खर्च कर देता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए बेटा सबसे देयर आर 2 टाइप ऑफ अप्रोचेस। या तो आप वेरिएबल एज्यूम करके अप्रोच करो, लेकिन वेरिएबल एज्यूम करके अप्रोच करने में कई बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम लोग वेरिएबल एज्यूम करके नहीं करेंगे। हम लोग इस क्वेश्चन को क्या बोलते हैं 100 मान के एज्यूम करेंगे। कैसे 100 एज्यूम करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखो ए मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम, यानी कि सपोज करो कि उस आदमी की इनकम है 100 रुपीज। ठीक है, अब इस 100 रुपीज में से वो क्या करता है, 75 रुपीज जो है वो स्पेंड कर देता है और 25 रुपीज जो है वो बचा लेता है। ठीक है, आगे क्या हुआ कि इफ हिज इनकम इंक्रीज्ड बाय 20%, उसकी जो इनकम थी ना वो 20% से इंक्रीज हो गई, यानी कि 100 का 20% क्या होगा 120। 100 से अगर मैं 20% के इंक्रीज की बात करूं, सो द नेक्स्ट वैल्यू विल बी 120। अब इसमें क्या किया, लेकिन साथ के साथ क्या हुआ, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 10% इंक्रीज हो गया। सो जो उसका आई वांट इन परसेंटेज, उसका जो एक्सपेंडिचर है वो 10% इंक्रीज हो गया, यानी कि उसका जो न्यू एक्सपेंडिचर होगा दैट विल बी 75 इंटू 1 plus 10 upon 100 which is equal to 82.5। ये आप लोग सॉल्व करोगे तो you will get it as 82.5। so his new income is 120, his new expenditure is 82.5। तो इसकी जो सेविंग्स है, सेविंग्स कितनी होगी, सेविंग्स विल बी 120 minus 82.5, so his savings will be nothing but 37.5। इसकी जो सेविंग्स होगी वो 37.5 होगी। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या था, आप ध्यान से समझो। ठीक है, प्रीवियस सेविंग इनिशियल वाज ₹25, saving final is ₹37.5। तो मुझे परसेंटेज इंक्रीज निकालना है, तो परसेंटेज इंक्रीज अपन कैसे निकालेंगे, 37.5 minus 25 divided by 25 multiplied by 100 which is equal to 12.5 divided by 25 into 100 which is nothing but 50%, which is nothing but 50%। तो उसकी जो सेविंग्स है बेटा वो 50% से इंक्रीज हो गई। ठीक है, so this was the question, although this question was above your level, but
आई गेव दिस क्वेश्चन डेस्परेटली, क्योंकि मैं ये आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ बेटा कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द बेसिक। बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए भी पहले ग्राउंड लेवल पे मिट्टी डाली गई थी, उसके बाद बुर्ज खलीफा बना था। तो आप लोगों के ऊपर अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ, इफ आई एम गिविंग माई टाइम और इफ अदर फैकल्टीज आर गिविंग देयर टाइम ऑन यू, सो दे आर बिल्डिंग द बेस ऑफ दिस बुर्ज खलीफा। आप लोग आगे जाके बुर्ज खलीफा बनोगे, ठीक है। कोई किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए